శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
निधये निधयेर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। हरिः ओम्। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिका चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टागाम अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं बंधनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम என்று
அந்த விஷ்ணுவின் புகழை செவியார கேட்பதும் அவருடைய கல்யாண குண வைபவங்களை வாயார பாடுவதும் அவன் நாமாவை மனமாற நினைப்பதும் அவனுக்கு திருத்தொண்டு செய்து அவனை புஷ்பத்தால் அர்ச்சிப்பதும் அவன் தாழினை தலையால் வணங்குவதும் அன்பால் மெய்யுருகுவதும் மனதால் தியானிப்பதும் அவனுக்கு அடிமை பூண்டு வாழ்நாளை கழிப்பதும் நமக்கு நிலையான பேரின்பங்களையும் சகல சௌபாங்கியங்களையும் தந்தருளும் என்பது அவனது பொன்னான திருநாமத்தின் பிரபாவம் அன்றோ? பக்தர்களே, விஷ்ணுவே பரம்பொருள் என்பது வேத வாக்கு. நாராயணா என்று அவன் திருநாமத்தை ஜபிப்போருக்கு நலமெல்லாம் பொங்கி பெருகும், நாளெல்லாம் இன்பம் தங்கும். இப்படிப்பட்ட இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருவேங்கடமுடையான் என்னும் திருநாமத்துடன் கண் கண்ட தெய்வமாக, பக்தர்களை காத்தருளும் பரம தயாளனாக, கேட்ட வரம் தந்தருளும் கருணை கடலாக, அருள் வடிவனாக, அலங்கார சுந்தர ரூபனாக, திருப்பதி என்னும் திருமாமலையை தமது விஜய ஸ்தானமாக நித்திய வாட்ஸ்தலமாக கொண்டு கோயில் கொண்டுள்ளார். அப்படிப்பட்ட மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே வைகான சாகம விதிமுறைப்படி அர்ச்சக்கர் சுவாமி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. சேவிப்போம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக. பக்தர்களே, இந்த திருமலை என்பது ஸ்வயம் பக்த க்ஷேத்திரம், அதாவது பரந்தாமனே விரும்பி எழுந்தருளிய க்ஷேத்திரம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் நித்தியவாசம் புரியும் இத்திருமலையில் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் பழமொழிக்கு ஏற்ப வருஷம் 365 நாட்களும் திருவிழா கோலம்தான். பக்தர்கள் திருவேங்கடமுடையானை பரிபூர்ணமாக நம்புகிறார்கள். அவனை நம்புவதால் மலைப்போல் வரும் துயரமெல்லாம் பனிபோல் விலகிவிடும் என்பதனை நெஞ்சத்தில் திடமாக்க கொள்கிறார்கள். 7 மலையானுக்கு அப்பால் கோவில் கொண்டிருக்கும் திருவேங்கடமுடையான் ஏழைகளை ரட்சிக்கும் கருணாகரன். मांगल्यकर्मांगम सर्वोकर्ण सत्यर्थम प्रत्यर्थम सर्वत्र प्रोक्षणार्थम पुण्यावाचनं करिष्ये आदो विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये अदंगम कनकाराधनं करिष्ये ओम धारात्मसमान रेचो सरत्सरित्स परिपूर्णतेषु अपोबकनं प्रतिपादकस्य गुणोमदत्ताकं सुदकं शर्मान यदमपस्यमा श्रुतमा शान्ता शान्तमा शुभा श्रुतमा पोता पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेत्या मेत्तमा अमृता अमृतरसाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पोता सूर्यश्च रश्मिभिः ओम येते शतं वर्णये सहस्रं मिष्टिका पाशार्दता पुरुत्रा तेभ्यो अन्तसवतो विश्वे देवा अमुञ्चितमर्दस्तस्या तरके पाञ्चपोतिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि वचे समवाहयामि रक्तान् मधुरमवाहयामि जलस्त्रिमवाहयामि वरुणाग्रमः युधमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं प्रजापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्दवाहनं तमाग्नेयोगस्मात् चामहे त्वा विश्वे सदात्तं मयितो निशम्भो वैराजन्ते सुगतन्निदत्तां तैषामदेशोपदानामनादिः यामे शस्तां दरितां दधातो पद्माकारमण्डले ओं शक्तिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानभागिनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे दिगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनम् विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्गुणज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि पुरुष्वान् वसुप्रोक्षितम् अस्तो प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागता विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं सपोटपस्य भागं सुरे
त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः धर्माणि धारकन् विष्णोः कर्माणि पश्यतगतावतानि पस्पसे हिन्दस्सगज्जस्सका तद्विष्णा परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासाविवण्यवोजाग्रवाकं पश्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविदत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं तस्तनोभिर्वशेम देवगितं यदागः पदवण्णसरतो अन्तिदेवागत्रानुश्चक्राजसं तनूनां पुत्रा सोऽयत्रपतरो भवन्ति मानो मद्या क्रीशता गर्गन्तोः अदित्योऽन्तरिक्षमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादिपञ्चजनामतर्जरितं यत्पुण्यं नक्षत्रद्वैतवृषं यदा वै सूर्यमुदेति अधनक्षत्रन्नगति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् गुरुविदगत्कारी स्यात् पुण्याय कुरुते प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतो श्रीनो सुनः वैवाकमहोत्सकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः कर्मणोऽस्तु पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः कर्मणोऽस्तु पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्ववा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतो वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गं पुण्याः कर्मणि पुण्यां वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति रथ्यास्महव्यै नमसोमसद्या मित्रं देवं तथैगन्नोऽस्तु अनुराधा नमिषा वर्धगन्तः रतञ्जीवमसरस्थवीराः प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतो वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गं पुण्याः कर्मणि पुण्यां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां पुण्याः वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां पुण्याः वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोगष्टामवस्थानभवच्छेदातना मखेरण चक्षुषे आपो जनगताजनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोतासपनातमां पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिगां पुनन्त विश्व आगमः जातवेद पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यत अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रण यत्तेर्वित्तवक्षसे अग्नेवतमन्तराम् ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्यै भक्त्यै स्तनवो वेतपुष्टाः तया उदन्तस्तमाद्येष वयज्ञस्यामदगौरगीनां वैश्वानरो सवनमा पुनातो वातप्राणेन शिरोमयोभोः द्यावा पृथिवीपगसापगोभिः व्रतावरे यज्ञगे मा पुनीतां जगद्भ्यः सविदस्तुभिः वरजिष्ठैर्देवमन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा पुनतां येनापो दिव्यङ्कृतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरद्येते संवृतकम्सं सर्वकं च भूतमश्नाते सवितं मातरिष्मणाम् अवमानीर्यो अद्येते संवृतकम्सं तस्मै सरस्वतीदुहे क्षीरकं सर्परमदोदकम् अवमानी स्वस्य गणे उदगाहे प्रगस्वते संवृतोर्जः ब्राह्मणे समृतम्बितम् अवमाने दिशन्तनः हिमल्लोकमदामं कामान् समर्थगन्तनः देवे देवै समामृताः अवमाने स्वस्य गणे उदगाहे कृतश्चनः संवृतोर्जः ब्राह्मणे समृतकम्बितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन हस्तधारेण अवमान्य पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रम् अतोऽद्यामहं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदोमगं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सगमापुनातो सामस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा पुरुणाभिप्रातमान् शतवेदामोज्जगन्त्यापुनातो तच्छम्यो नावृणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातवेढुतं षण्णोऽस्तुद्यपदे कञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां देवार्तजो मार्तिगन्तां दक्षिणागां दिशमाघा प्रतरो मार्तिगन्तां प्रतीच्यां दिशग्रहा प्रथमो मार्तिगन्तामदीत्यां तेस्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्तिगन्तामूर्ध्वागां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपदर्मार्तिगन्ताम् अदोतरातरेर्नाघेभ्यो मार्तिगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् मगतो महीगानात्मा गुहागान् निगतोऽस्य जन्तो यज्ञपदर्मार्तिगन्ताम् अदोतरातरेर्नाघेभ्यो मार्तिगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् मगतो महीगानात्मा गुहागान्
निगतास्तजन्ताः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात् मगमानमेषं सप्त प्राणा प्रवन्ति तस्मात् सप्ताचिदः समिदः सप्त जिह्वान् सप्तगिमे लोकाय रुचरन्ते प्राणा गुहासकान् निगताः सप्त सप्तान् अतः समुद्रागर्गच्छ सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते बिन्दवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावौषधघोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा पुरुणाक्रमः विश्वक्सेनाक्रमः पुनःपाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सकं यथास्तरं प्रतिष्ठापयामि समरार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच्छ ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருவேங்கடமுடையான் ஏழைகளை ரட்சிக்கும் கருணாகரன், கலியுக வரதன், புண்ணிய புருஷன், புருஷோத்தமன், குவளையம் போற்றும் கோவிந்தன். கோவிந்தா 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 என்று உள்ளம் உருக அவனது திருநாமத்தை கூவி அழைக்கிறோம் அல்லவா பக்தர்களே. அவன் நமது குரலை திருச்செவிகளிலே சங்கீர்த்தனமாக சாதித்துக் கொண்டு சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பொன்மழையாக நமக்கு வர்ஷிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். வெங்கடாத்ரி சமம் ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன வெங்கடேஷோ சமோதேவோ நபுதோ ந பவிஷ்யதி என்றபடி ஏழுமலையானுக்கு நிகரானது வேறு ஒன்றும் இந்த உலகில் இல்லை, இனிமேல் இருக்க போறதும் இல்லை என்பதே இதனுடைய பொருள். அப்படி எந்த ஒரு மங்கள காரியம் செய்வதற்கு முன்பும் சரி, நாம் முதலில் ஆச்சாரியத்துடன் படி கடவுளை வணங்கிவிட்டுத்தான் மற்ற காரியங்களை செய்வோம். அதேபோல் இங்கும் கூட முதலில் விஸ்வக்சேனர் ஆராதனை செய்த பின்னரே எந்த ஒரு காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும். அப்படி ஆனந்த நிலையகா கல்யாணம் குணசாகரகா பக்த பிரியோ ஜெகநாதகா ஸ்ரீனிவாஸ்துமே என்று அந்த பகவானை இதோ நாம் அங்குரார்ப்பண வேளையிலே சேவித்து கொண்டுள்ளோம். திருமுலை சாற்றுதல் என்கிற அங்குரார்ப்பணம் என்பது தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியம், தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்வது. அப்படி அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை இட்டு அதிலே திருத்துழாய் சேர்த்து அஷ்டதிக் பாலக்கரையும் தேவர்களையும் இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்காக வரவேற்பு கொடுக்கிறார்கள். அதுதான் அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமுலை சாற்றுதல் என்பது. மலையப்ப சுவாமிக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. அந்த மண் பாலிகையிலிடும் நவ தானியங்களானது திருமுலைகளை, அதாவது முளைவிட்டு பயிராக வளரும் அல்லவா. அப்படி திருமண வாழ்க்கை கூட வசந்தமாக ஆனந்தமாக இருக்கும் என்று அந்த ஆனந்த நிலையின் வாசனின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பின் மூலமாக பகவானை நாம் சேவித்தால் நம்முடைய பாவங்களே எல்லாம் தொலைந்து நீக்கப்பட்டு புனிதமாகி விடுவோம் அல்லவா. திருத்துழா என்றால் அந்த ஆண்டாளுக்கு பிரியம். ஏனென்றால் அவள் அந்த வனத்திலேயே கண்டெடுக்கப்பட்டவள், துளசி வனத்தில் அருகிலே. அப்படிப்பட்ட திருத்துழாய்க்கு புஷ்பங்களுக்கு இல்லாத சிறப்பும் உண்டு. பக்தர்களே, இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அர்ச்சக்கர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜையை செய்ய உள்ளார். ரக்ஷா பூஜை என்பது எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கரங்களில் கட்டப்படும் நாகாபரணம். नागरदमवाहयामि शेषाग्रमः इदमासनं शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो अवमेतामस्य नाभगः स्वस्ति देवेतरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तगे ब्रह्महे सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तगे देवा अवन्त्रभुव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रपात्तं हासः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति नगिन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो आदिते कृते स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आयुवा पुनर्तदताज्ञता जानता सङ्गमे महे स्वस्तगनं तार्क्षमरिष्ठणे महद्भूतं वागसं देवतानां
असुरग्धमिन्द्रसकं समत्स बृहद्य सोनाममिवारुहेम अं होमुच वाङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जतार्क्षं भगतवानि शरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भादे शुभगन्नोऽस्तु शुभगं शुभम् மலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம். ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். உன்னை காண 10,000 கண்கள் வேண்டுமே, நான் ஏழை தாமரை கண்ணா முனை புங்கவர்களுக்கு அருள்பவனே, அன்பின் மயக்கத்தால் உன்னை தரிசிக்க வந்த எனக்கு அபயம் அளித்தாய், நீயே கதி என்று அந்த பகவானை இப்படியெல்லாம் நாம் சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது ரக்ஷா பந்தனம் என்பது பகவானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கட்டப்படும் கயிறு என்று கூறுவார்கள். அதை பூஜை செய்து காப்பு கட்டுதல் என்றும் சொல்லுவார்கள். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே முதலில் எம்பெருமானுக்கும் அதை தொடர்ந்தாற்போல் நாச்சிமார்களுக்கும் கையிலே கட்டப்படும் ரக்ஷா பந்தனம் எனப்படும். நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். சக்கரவர்த்தி திருமகனாம் ஸ்ரீ ராமபிரானின் வனவாசத்தின் பொழுது அவர்களுக்கு மனித வர்க்கம் மற்றும் அல்லாமல் இனங்களும், அதாவது விலங்கு, பக்ஷி, அணில் போன்ற சிறிய ஜந்துக்களும் மலை சமுத்திரங்களும் கூட ராமனின் கைங்கரியங்களை செய்து பெயர் பெற்றதாக புராணங்கள் கூறுகிறது. ஆனால் கழுகு அரசர்களாக ஜடாயு சம்பாத்தியம் செய்த பேர் உதவியை மறக்க முடியாததாக உள்ளதாம். ராமபிரானுக்கே உயிர் நீத்த அந்த ஜடாவின் செயலை பக்தி மார்க்கத்தில் ஆகம் நிவேதனம் என்ற வகையில் சார்ந்ததாக பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள். ராவணனுடன் சண்டையிட்ட சீதா பிராட்டியை காப்பாற்றும் முயற்சியிலேயே ஜடாயு தன்னுடைய 2 இறக்கைகளையும் இழந்து உயிர் சுரக்க நேரிட்டது என்பது அனைவருக்கும் அறிந்த செய்தியே அல்லவா? சம்பாதி எவ்வாறு உதவி செய்து நற்கதி எவ்வாறு அடைந்தான் என்று பார்த்தால், ராமபிரான் வனவாசத்தில் கிஷ்கிந்தையிலே சுக்ரீவனை நண்பனாக ஏற்று அவன் மூலம் சீத்தையை தேட முயற்சித்தார் அல்லவா? அந்த சுக்ரீவனின் ஆணைப்படி தென் திசை நோக்கி அங்கதன், ஜாம்பவான், ஹனுமான் மற்றும் வானரங்கள் கூட்டங்கள் பல இடங்களில் தேடியும் சீதா பிராட்டி கிடைக்காமல் மறுபடியும் வருகிறாராம். மகேந்திர மலையடி வாரத்தில் தங்கி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த மலையின் குகையில் வயதான ஒரு கழுகு ஒன்றினை சந்தித்தாராம். அதுதான் சம்பாதி. வானரங்கள் மூலம் ஜடாயுன் இறப்பை பற்றி அறிந்த சம்பாதி மிகவும் வருத்தப்பட்டு தனது அண்ணனுக்காக செய்ய வேண்டிய காரியங்களையும் பற்றி தகவல்களையும் சீதா பிராட்டியை தேடி வானரங்கள் வந்ததை பற்றி தெரிந்து கொண்டானாம். அங்கதனிடம் தானும் தனது சகோதரனும் சூரியனை நோக்கி தங்கள் பலத்தை பரீட்சை செய்ய சென்றபோது சூரியனின் வெப்பம் தாங்காமல் அன்னை ஜடாயு காப்பாற்றிய நேரத்திலே தன்னுடைய இறக்கைகள் எரிக்கப்பட்டு தான் விந்திய மழையிலே விழுந்ததை பற்றி கூறினாராம் சம்பாதி. அப்படி அந்த ராம அவதாரம் எடுத்த திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் இப்போது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் எம்பெருமானுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதை தொடர்ந்தாற்போல் இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் செய்து கொண்டு உள்ளார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. அந்த தருணத்திலே சீதாதேவியை யார் அபகரித்தார்கள் என்பது தெரியுமா என்று கேட்பதற்கு ராமா ராமா என்று கத்திக்கொண்டு செல்லும் ஒரு இளம் பெண்ணை ராவணன் எடுத்து சென்றதாகவும் அவள் சீத்தையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றும் சம்பாதி கூறுகிறாராம். தன்னுடைய புரிய பார்வையினால் 800 மைல் தூரத்தில் இருக்கும் இலங்கையும் சீத்தை இருப்பிடத்தையும் காண முடிகிறது என்று நிச்சயமாக சீத்தையை கண்டு மீண்டும் திரும்பி வருவீர்கள் என்று கூறி ஆறுதல் படுத்தினாராம் அந்த சம்பாதி. அப்படி சம்பாதி என்கிறவன் ராமாவதாரம் காலத்திலே ஜடாயுன் சகோதரனாக இருந்தவன் அல்லவா? அவர்களை எல்லாம் சேவிக்கும் ராம அவதாரத்தின் தரிசனத்தை கொடுத்த இப்போது திருவேங்கடமுடையான் எழுந்திருக்கிறார் நமது வெங்கடமுடையானாக. அவர்களுடைய வக்ஷஸ்தல நாயகிகள் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் பூதேவி பிராட்டிக்கும் இப்போது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதை நாம் எம்பெருமானின் கல்யாண
உற்சவத்தில் சேவிக்கும் பாக்கியத்தை நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். பக்தர்களே, அனந்த ஆழ்வார் என்பது திருமலையில் திருவேங்கடமுடையானுடைய புஷ்ப கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கும் சமயத்திலே அவரை பார்க்க திருவரங்கலத்திலிருந்து ஒருவர் வந்தாராம். வெகு நேரத்திற்கு பின்னரே வந்த அனந்த ஆழ்வாரிடம் திருமால் பக்தர்க்கு உரிய குணங்கள் எவை எவை என்று கூறுமாறு வேண்டினாராம். கொக்கு போல, கோழி போல, உப்பு போல, உம்மை போல இருப்பதுதான் மாலவன் அடியாரின் லட்சணங்கள் என்று வந்தவர் வழிகவே அதற்கான விளக்கத்தை சொன்னாராம். கொக்கு என்பது தன்னை எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ற மீன் கிடைக்கும் வரை மற்ற மீன்களை தள்ளிவிட்டு காத்து இருப்பது போல் உலக இன்பங்களிலே மனம் ஈடுபடுவதை புறக்கணித்து பகவானின் கைங்கரியத்தை செய்வதற்காக பாக்கியத்தை எதிர்நோக்கியவாறு இருக்க வேண்டும். கோழி கால்களால் குப்பைகளை கலறி வேண்டாதவற்றை ஒதுக்கி இறுதியிலே கிடைக்கும் நெல்மணியை கொத்தி எடுப்பது போன்ற உலகப் பொருட்கள் மீதான ஆசையை விலக்கி இறைவனின் திருவடிகளை பற்றுவதையே குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். சமையலில் உப்பு பெரும் பங்கத்தை பதித்தாலும் அது தன்னை காட்டிலும் தன்னுடைய முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்வதிலே கவனம் செலுத்தாமல் அந்த உப்பு அதிகமாகிவிட்டால் அதுவே கரைந்துவிடும் அல்லவா? அதேபோல் அந்த உப்பினை விட்டு எவ்வளவு வேண்டுமோ அடியவரும் தன் முன்படுத்திக் கொள்வதிலே கவனம் செலுத்தாமல் தன் சார்ந்து இருக்கும் கோஷ்டிகளுக்கு உயர்வை உண்டுபடுத்த வேண்டும். இப்படியெல்லாம் இருப்பதோடு நான் வருவதற்கு மிகவும் தாமதமான போதிலும் பொறுமையை காத்திருக்கேல் இவ்வாறு பொறுமையுடன் இருக்கும் திருமாலின் லட்சணம் என்று சொல்லி முடித்தாராம். இதோ சேமிப்போம் அடுத்த கைங்கரியத்தை. मयि देवा द्रवणमागजन्तां शीरस्को मयि देवहूतिः दैव्या होतारावणसन्तपूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः उद्धन्यमानमस्य अमेद्यं वाप्मानं शिवानुजन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् कृतप्रतीको कृतयो निरग्नेर्कृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नं प्रजस्वादरितोपखन्ते कथं पिबन्सि गजा यक्षिदेवान् उणधेर्मन्यस्व सरस्तेर्मन्यस्व देवसवितः प्रसवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं परस्ताजुषीमतस्तृचो वेन आवह स बुद्ध्यापमा अस्य विष्टासदश्च वनसदश्च वः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजापतिमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमाधेनगं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातो साधन्यं विदत्तकं सवेयं पुतस्रवणं यो ददास तस्मै ॐ सोमवाहयामि विज्ञानमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि समप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठेजमानो वस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृता मित्रलोकस्तत्रयजमानचदेहे ॐ प्रोक्ष पात्रादातावमाधाका कवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो भाग्यपूतेस्तो विष्णोर्मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा कोशा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णामृतन्त्वा स्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयां महाविष्णुमवाहयां सदा विष्णुमवाहयां व्यापणमवाहयामि कृतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः शुन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पुष्टेजमानो अस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृता मित्रलोकस्तत्यजमानचदेहि ॐ प्रणग को व प्रणयत् स व प्रणयत् को व युनक्त स व युनक्त संबिढन्तां दृढपात्रान् देवगज्ञागै दक्षिणप्रणतो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजातिमवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयाम् अग्निमवाहयां सोममवाहयामि अग्निमवाहयां सोममवाहयाम् अग्निशोमानवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनवाहयां मृतमवाहयां रुद्राणवाहयामि आपौपस्पृश्यां
श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अस्सनमवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि अकृदेशमवाहयामि औपासनज्ञमवाहयामि विस्वान् देवानवाहयामि स्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे प्रजापति शुंडरपामि ब्रह्मणे शुंडरपामि इंद्रा शुंडरपामि वसुभ्यो शुंडरपामि मरुद्भ्यो शुंडरपामि रुद्रेभ्यो शुंडरपामि आपा उपस्पृश्यान् श्रीविष्णुपामि बृहस्पति शुंडरपामि मित्राज शुंडरपामि वरुणाज शुंडरपामि आदित्येभ्यो शुंडरपामि अस्भ्यां शुंडरपामि पूष्णे शुंडरपामि कक्षाय शुंडरपामि क्षये सोमाय शुंडरपामि औपासज्ञा शुंडरपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो शुंडरपामि सर्वदेवेभ्यो शुंडरपामि आज्यं त्रिप्रदर्शयामि चिरं त्रिप्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसे समिद स्वाहा अमृतमसे रणमसे अंतरकं वक्ष अंतरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य तस्य विस्मः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य तस्य विस्मः देवस्त्वासवितापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य तस्य विस्मः करसम्पूर्णवा समितो गृहीत्वा मूलाघ्राभ्यां गतगस्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टका वेणवः सन्तो इंद्राग्रमः अग्निर्मः यमाग्रमः निरृतयेर्मः वायुवेर्मः कुबेराग्रमः ईशानाग्रमः अग्नयेर्मः उतमहाग्रमः उताश्रेणमः कृष्णवर्त्रेणमः देवगान्मः वैश्वानरागणमः यज्ञपुरुषाग्रमः अतिरमन्यस्व मुदिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितः प्रसवा ओम अयंत यज्ञ आत्मा जतवेदस्तेनेद्य सवर्धस्व चेर्भवद्गचास्मान् पदगा पशुभिर्ब्रह्मत्सेनान्नाद्येन समेदग स्वाहा वायुव्याधाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा अरित्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्यान् श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अशुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अकृते सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा विघ्नविश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा कर्व्याभिगार्गाचलं सावित्र्या गृहीत्वा चुक्वा व्यागते ज्योति ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अवितेर्नमग्रस्तादेव सविधप्रासाभिः प्राणानागम्याम् अस्यां रोतो श्री श्रीनिवाससुरा वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाते षोडलोपे मंत्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे शोधोषपरागश्चित्तार्थम् अतो देवतवैष्णवतिर्घोष्ये अतिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसवान् ओम मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदे पदं समोढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः धर्मानिधानगन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वस्यते गतो अवतानि वस्पते इन्दस्य गज्जस्सगा स्वाहा अद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि उचक्षरागदग्ग स्वाहा अद्यप्रासायुपण्यमो जाग्रवागं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अवितेनमग्रस्तादेनमग्रस्तादस्तेनमग्रस्तान् देवसवितः प्रासाभिः
తనమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తనమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి సింధులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా ప్రవృతిశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పదం వ్యాప్తే వాయురాకాశపదహంకారం వ్యక్తా వ్యక్త సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ భగతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తల తల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం మధోభాగే మహానాలాగమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణమణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిక్తంతే శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోమతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి త్యష్టదేవ పురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరతి వర్ణవాయుకుబేరగీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనే క్షుదిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబో ప్లక్ష కుశక్రౌంచ సకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమణిసుదక్షవత్వింజ పారిజాతాఖ్య సప్తగురపద విరాజితే భారత కిం పురుష హరిణావత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకర్మణకౌరువర్షాఖ్య వర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకబస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమూమధ్యనేకాయ పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకలదేవతా సన్నిధౌ మమ అనేక జన్మసు ఇక జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధకేషు రగసి ప్రకాశే చ ఆవర్త అనావర్త మహాపాతకాదే సమస్తయుతక్షయార్ధం అసపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః उत्तीर्य श्रीहरिलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृता अग्निष्टोमतरात्राप्तोर्गाम शान्तवर वाजपेय पौण्डरीक
अश्वमेधादि हृदकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेशो सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थम् श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिन्मन्वरुदिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादितकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थम् कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि पञ्चाङ्गधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकार्षगोवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्गामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थलकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतारप्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाग भक्तलोकपरिपालनाग किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुभालङ्कृताग दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्याशोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकलशाखाध्यागिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवत्स्यवन आप्तमान औरवैदल पञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनकां श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहूश्यामलाङ्गे रेवते नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनकां भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामिष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकजगीषगा कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं श्रीरागसमेधसे जगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை தாய்மார்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி.
கர்க்கட்டே பூர்வ பல்குன்யாம் துளசிகானனோத்பவாம் பாண்யே விஸ்வம் பராம் கோதாம் வந்தே ஸ்ரீரங்க நாயகீம் என்று ஸ்ரீவல்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வார் நந்தவனத்தில் துளசி மலரில் கலி 98 அவதான நலவருடம் ஆடி மாதம் சுக்லபக்ஷம் சதுர்தசி செவ்வாய்க்கிழமை கூடின பூர நட்சத்திரத்தில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் பூமி பிராட்டி அம்சமாய் மனித இயற்கை பிறவி போலின்றி ஆண்டாள் திரு அவதரித்த அருளினாள். பெரிய ஆழ்வார் திருத்துழாய் பாத்தியமைக்க களை கொட்டு கொண்டு நந்தவனத்தை கொத்து கையில் அவதரித்தாள். அவதாரம் சனகன் மகள் சீதையினது போன்றது. பெரியாழ்வார் தனக்கு இறையருள் கிடைத்த மகளை கோதை என்று பெயரிட்டு மிக அருமையாக வளர்த்து வந்தாராம். திருத்துழாய் முளைவிடும் போதே தம் செம்மை மனம் இவற்றை வெளிப்படுத்துவது போல் கோதையும் இளமை தொடங்கிய திருமாலிடம் பக்தி பெருவேட்கை கொண்டு மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப்படியில் வாழ்கிறேன் என்று திருமாலையே மணக்க உறுதி பூண்டாளாம். ஆண்டாளின் பக்தி பெருக்கு திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி என்று நூல்களாக வடிவெடுத்தது. பெரியாழ்வார் வெளியில் சென்ற சமயம் பார்த்து அவர் வடபெருக்கோயிலுடையானுக்கு புனைந்த மாலைகளை தான் அணிகலர்களுடன் அணிந்து திருமாலுக்கு நேரத்திருக்கின்றானோ என்று ஒப்பனை இழைக்க கண்ணாடியிலே பார்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டாளாம் ஆண்டாள். ஆழ்வார் திரும்புவதற்கு முன் மாலைகளை களைந்து செண்டாக சுற்றி கூடையில் வைத்து விடுவாளாம். ஒரு சமயம் விரைந்து மீண்டும் வந்த ஆழ்வார் தன் மகளின் செய்கையை நேரில் கண்டு கோபம் கொண்டு இறைவனுக்கு அணிவிக்கும் மாலையை முன்பே அணிந்த பிறகு அவனுக்கு அளிப்பது குற்றமென்று அறிவுரை கூறி வடபெருக்கோயிலுடையானுக்கு மாலையை அன்று அணிவிக்காமல் மனம் நொந்து வாளாவிருந்து விட்டாராம். அவர் கனவில் வடபெருங்கோயிலுடையானுடைய தோன்றி கோதை சுடிக்களைந்த மாலையே நறுமணம் மிகுத்து உகப்பவதாக என்று ஆழ்வாருக்கு அறிவித்தனன். அன்று முதல் பெரியாழ்வார் கோதையின் சிறப்பை கேட்டு வியந்து இறைவனின் பிராட்டியின்மை சென்று கருதி ஆண்டாள் என்று சுடிக் கொடுத்த நாச்சியார் என்றும் அவளை அழைத்தாராம். பக்தர்களே, மனப்பருவம் வந்தவுடன் ஆழ்வார் தன் மகன் ஸ்ரீரங்கநாதனையே மணக்க விரும்புவதை அவளை கேட்டறிந்தாராம். ஸ்ரீரங்கநாதன் தனது கோயில் தொண்டர்களுக்கு கனவில் தோன்றி தன் பல்லக்கை எடுத்து சென்று ஆண்டாளை அதிலேற்றி அழைத்து வர ஏவினானாம். ஆழ்வார் நம் பெருமாள் தொண்டர்கள் வரவை கண்டு வியந்து வடபேறு கோயிலுடையானின் அமைதி பெற்று ஆண்டாளுடன் பிரயாணமாயினாராம். கூடல் நாட்டரசன் ஸ்ரீ வல்லப்ப தேவனும் செய்தறிந்த ஆண்டாள் திருக்கல்யாணத்தை சிறப்பாக நடத்த ஏற்பாடு செய்தார். வழிநெடுக்க தோரணம் கட்டி பந்தல் நாட்டி வாழை கழுகு நாட்டி மணிச்சிவைகையில் மங்கள வாத்திய இசையுடன் ஆண்டாளை திருவரங்கத்தேர எழுந்தருள செய்தாராம். திருவரங்கம் பெரிய கோயிலை அடைந்ததும் அந்த பெரிய பெருமாளது பேரழகு ஆகா மணப்பெண் கோலத்தில் இருந்த ஆண்டாளை இரும்பை காந்தம் கவர்வது போல் கவர்ந்தது. அன்னநடையை பெருமாளுக்கின்று சென்று திருவரங்க திருவடி வருட நாகனையை மிதித்தேறி அப்பெருமாளுடன் கலந்து என்றும் பிரியாது இருப்பவளாயினாள். பக்தர்களே, திருவாடி பூரத்து செக்கத்துதித்தால் வாழியே, திருப்பாவை 30 செப்பினால் வாழியே, பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே, பெரும்பதூர் மாமுனிக்கு பின்னானால் வாழியே, 140 மூன்றுரைத்தால் வாழியே, உயிரங்கற்கே கனியுகந்தளித்தால் வாழியே, மறுவாரும் திருமள்ளி வளநாடி வாழியே, வனப்புதுவை நகர்கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே என்று கூறுகிறார். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பூமாதேவி பொறுமையின் பூஷணம், பூதேவி தாயார் அல்லவா? அப்படி அந்த மகாலட்சுமியின் அம்சமாய் அவதரித்த கோதை என்னும் ஸ்ரீ ஆண்டாள் இதோ நமக்கெல்லாம் பூமி தேவி பிராட்டியாக காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறாள். அப்படிப்பட்ட மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ நாம் மாங்கல்ய தாரண கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். இதோ ஷோடச உபச்சாரத்தை செய்த பின்பு
திருமாங்கல்யங்களை உபய நாச்சிமார்களான முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பிறகு பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா, பூதேவி தாயாருக்கும் மாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக. சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாதாரம் ககனசதுர்ஷம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம் லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகிருத்யானகம்யம் மந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் சர்வலோகைக்கநாதம் என்று இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இதோ இன்னும் சற்று நேரத்திலே மங்கல்யதான கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். பிரஜாபதிஸ்ஸாமகம் ராஜா நமஸ்ருஜதாம் தந்திரகாவேதான்வசுஜ்யந்த தான் ஹஸ்தே குருத அதஹ சீதா சாவித்ரி ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. பிரஜாபதிஸ்ஸாமகம் ராஜா நமஸ்ருஜதாம் தந்திரகாவேதான்வசுஜ்யந்த तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तः समूहूर्तोऽस्तु. यज्ञस्त्रे पौत्रमन्नरोधात् स्वाहा घार्गवत्ये प्रजामश्चेनि सुदीर्घमायुः असोऽन्यपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमन्नप्रवच्यदाग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अवितेनमक्कस्तादेवसवितप्रासावीः प्राणानागम्यास्यां शुभतो श्रीनिवासस्तुमनः वैवाकमहोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नो राजहोमं करिष्ये तेनमुञ्जस्वा देवसवितप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिगार्य
इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवधनात् तदग्नेरणमन्यताम् यन्नार्यपभ्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवधनात् तदग्नेरणमन्यताम् यन्नार्यपभ्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवधनात् तदग्नेरणमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अवितैर्मग्गस्तादेव सवितप्रासाभिः प्राणानागम्यास्यां श्रुतो श्रीनिवासवर्हा वैवाकमहोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नौ तदहोमान्ते अतो देवदैवैष्णवतिर्घोष्ये अवितैर्मन्यस्वा अमुतैर्मन्यस्वा स्वस्तिर्मन्यस्वा देवसवितप्रसमा ओम मतो देवा अवन्तनागता विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानुदे पदं समोढवस्य भागं सरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अथाभ्यः धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगता अपदानि पस्पते इन्द्रस्य गज्जस्सका स्वाहा अद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवजक्षरावतज्ञ स्वाहा अद्यप्रासौ पण्डवो जाग्रवाकं वस्यमन्दते विष्णोर्यत्परं पदज्ञ स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितैर्मग्गस्तादेवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्याम् अस्यां शुभतो श्रीनिवासवर्हा वैवाकमहोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नौ क्रमसाद्गुण्यार्थपृष्टान्तहोमं करिष्ये अवितैर्मन्यस्वा अणुतैर्मन्यस्वा सहस्रैर्मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम हितः सकरणो त्रिसम्मिज्वानि महाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये एन्नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं तदमौष्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाबुदग्नस्तपुनरः जतवेदा वज्रषणि स्वाहा पुनर्दक्षदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्रां शुक्रात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वज्रनिष्ठेभ्य स्वाहा वृषं दृष्टि स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दूराद्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येदो ओषधीमहि स्वाहा समिदसि तेजोषधे धूमगिदे स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा ओम सप्तदे अग्ने समितः सप्तजक्वा सप्तऋगसप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा आस्वधात्महिणाप्रणस्वाकृते स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदिर्भक्तः स्वाहा अजोर्भक्तः स्वाहा प्रतिभक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा अजोर्जीर्णः स्वाहा प्रतिभिर्जीर्णः स्वाहा ओम सप्तदे अग्ने समितः सप्तजक्वा सप्तऋगसप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा आस्वधात्वा गठन्ते सप्तगौनीराप्रणस्वाकृतेन स्वाहा यदान विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाकुतिञ्जहामि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्रागजहामि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो जौस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अवितैर्मग्गस्तादेवसवितप्रासाभिः दक्षिण उत्तरतो आवाहितान् देवताभ्यो नमः यदा सकं क्षेमाय पुनरागमनाय पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूया अक्षरमक्षत्येतमोमि क्षेत्राः राज्यां दक्षिणागां प्रदेश्यां पूर्वागाम् अधरागां माद्रगन्तां पश्चिमतः परद्योपनगां दक्षिणतः परद्योपनगां उत्तरतः परद्योपनगां पश्चिमतो विष्णु सदनमसि दक्षिणतो विष्णु सदनमसि
उत्तरतो विष्णुस्वरमसि प्राच्यां विष्णुस्वरमसि सर्वान् प्रथमोक्यां गन्धं विसृज्य विप्रोक्ष्य आप्यागन्तामति होते आप्यागन्तामापवोषितगोमृतां सद्यन्तां देवसदनकं सद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगाकुशं समदग्ने कस्य वस्य प्रगाकुशं यद्देवानां प्रगाकुशं तन्मे अस्त्वत्रगाकुशं दीर्घाय भराय शताय सदन्तवर्तसे प्रगाकुशं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगाकुशं जपदग्ने कस्य वस्य प्रगाकुशं यद्देवानां प्रगाकुशं तन्मे अस्त्वत्रगाकुशं दीर्घागत्वागा बलागा सतागा वदञ्चवर्तसे प्रगाकुशम् आपोगिष्टामगाभुवस्तानभूर्जयसाधना आपो जनगताचनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूया संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कुतासनां यत्कन्तुनयादेव परिपूर्णं तदस्तते प्रायश्चित्तानि होमकर्मात्मकानि वै तानि तेषामशेषेण कृष्णान् स्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि दुःखत्समाराधनं सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सकं यदास्तं प्रतिष्ठापयामि समनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नगे नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नगे नमः आदित्योपगच्छामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्री भूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்க கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே லாஜ ஹோமத்தை ஆரம்பித்த அர்ச்சக்கர் சுவாமி பூர்ணாகுதியுடன் பூர்த்தி செய்தார். இதோ அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். வாரணம் 1000 குலவலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றதா என்றதீர் பூரண பொற்கொடம் வைத்து புறமெங்கும் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று கூறியபடி இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரம். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. கூடாரை வெல்லும் ஷீர் கோவிந்தா உன் தன்னை பாடி பறைக்கொண்டு யாம் பெரும் சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோல்வளையே தோடே செவி பூவே
பாடகமே என்றென்னை பல்கலனுயாம் அணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை செய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோ எம்பாவாய் என்று திருவேங்கடத்தானின் மங்களகரமான திருக்கோலத்தையும் அவர் அணிந்துள்ள அணிமணி ஆபரணங்களையும் மணியான திருமொழியால் தெளிவாக சொல்லுகிறாள். கிளி ஒன்றை தமது காதலன் கண்ணனிடம் தூது போக சொல்லுகிறாள் ஆண்டாள். பதிக்கத்தால் சுடற்கொடி நாச்சியார் அக்கிளியிடம் என் வெங்கட்டவன் வர கூபுவாய் என்று வேண்டுகிறாள். கோதை வளர்த்த கிளியும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று கூவிக்கொண்டே இருக்குமாம். பக்தர்களே, இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமி சூடிய மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அர்ச்சக்கர் சுவாமி இதோ சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீதேவி சூடிய மாலையை திரும்பவும் கொண்டு போய் பகவானுக்கே சமர்ப்பித்தார். பின்பு பகவான் சூடிய மாலையை ஆண்டாள் கோதை நாச்சியாருக்கே சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஆண்டாளாக, அதாவது இந்த யுகத்தில் அவதாரம் செய்த பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்த மாலை திரும்பவும் கொண்டு வந்து மலையப்பனுக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. இப்படி 3 முறை மாலையை மாற்றியாகிவிட்டது. பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை நேரிலே அமர்ந்து கோவிந்தா 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 குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்தனை மனமாற பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் சிரம் தாழ்த்தி சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். பக்தர்களே, நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம். இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஷா கோவிந்தா கோவிந்தா சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே என்று சேவிப்போம். அர்ச்சக்கர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. தொடர்ந்து இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களை மலையப்ப சுவாமியை ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? தலம்பராளி கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ